और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे हैं और अपने संबोधन में टैरिफ को लेकर उन्होंने सबसे बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का टैरिफ के बदले टैरिफ लगाने का ऐलान एक बार फिर से किया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। दशकों से हमें लूटा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, चीन, भारत, कोरिया ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और 2 अप्रैल से टैरिफ के बदले टैरिफ नियम लागू होगा। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से टैरिफ को लेकर पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगने से अमेरिका संपन्न होगा। However, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. तो टैरिफ के बदले टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में उन्होंने घुसपैठ को लेकर भी बड़ी बातें कही। घुसपैठ एक बीमारी है, इसे रोकना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ अब सबसे निचले स्तर पर है। घुसपैठ रोकने के लिए आपातकाल लगाया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप संबोधित कर रहे हैं सदन को और 43 दिन का उनका जो पूरा अभी तक का कार्यकाल रहा है उसको लेकर भी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जिस पर दुनिया भर की इस वक्त नजर है। Hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever. They heard my words and they chose not to come. Much easier that way. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history, there were hundreds of thousands of illegal crossings a month, and virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums, were released into our country. Who would want to do that? बता दें, ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को भ्रष्ट कहा है। अमेरिका पेरिस समझौते से अलग हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें जो बाइडेन को सबसे अब तक के जो वर्स्ट राष्ट्रपति हैं ऐसे कह के संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी यहां पर निशाना साधा गया है। साथ ही आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बाइडेन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। बाइडेन के कार्यकाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। $22 billion from HHS to provide free housing and cars for illegal aliens. $45 million for diversity, equity, and inclusion scholarships in Burma. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows what that is.
$8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment in Central America. $60 million. $8 million for making mice transgender. This is real. $32 million for a left-wing propaganda operation in Moldova. $10 million for male circumcision in Mozambique. $20 million for the Arab Sesame Street in the Middle East. It's a program. $20 million for a program. $1.9 billion to recently created Decarbonization of Homes Committee, headed up, and we know she's involved. Just at the last moment, the money was passed over by a woman named Stacey Abrams. Have you ever heard of her? A $3.5 million consulting contract for lavish fish monitoring. $1.5 million for voter confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. $59 million for illegal alien hotel rooms in New York City. He's a real estate developer. He's done very well. $250,000 to increase vegan local climate action innovation in Zambia. $42 million for social and behavior change in Uganda. तो ट्रंप इस वक्त भाषण दे रहे हैं और ट्रंप के भाषण पर पूरी दुनिया की नजर है। स्क्रीन पर आप कर्नल शैलेंद्र को देख रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल शैलेंद्र आपका। कर्नल शैलेंद्र, ट्रंप को हमने सुना और सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त सुन रही है। यकीनन पूरी दुनिया की ट्रंप के भाषण पर नजर है। 43 दिन का कार्यकाल, उसका लेखा जोखा भी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं और इसके साथ ही बड़ी बातें वो कह रहे हैं। किस नजरिए से आप उनके इस भाषण को देखते हैं अभी तक जिन्होंने बातें कही, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या घुसपैठ को लेकर हो? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है कि ट्रंप यूएस को ही नहीं पूरी दुनिया को इस समय अफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो अनाउंसमेंट्स, जो रेडिकल अनाउंसमेंट्स उन्होंने करी हैं वो हर जगह अफेक्ट होने वाला है। यूक्रेन युद्ध अफेक्ट होने वाला है, इजराइल युद्ध अपने आप में अफेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड अफेक्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट अपने आप में कोई भी प्रेसिडेंट अगर अपनी कंट्री को फर्स्ट रखता है तो मुझे लगता है उसमें कोई हर्ज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो टैरिफ को रेसिप्रोकल बोलता है तो बड़ी सीधी बात है कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर एक ही कंट्री सिर्फ टैरिफ लगा रही है तो मुझे लगता है उनको भी हक होना चाहिए कि वो अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करे। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो 43 डेज़ में जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 400 से ज़्यादा दिए हैं, ये दिखाता है उनका हरी, उनका विल, उनका कन्विक्शन कि वो जो करने आए हैं उन्हें मालूम है 4 साल हैं, मुझे इसमें सब कुछ अपने देश के लिए करना है। ही इज़ मेकिंग हिज कंट्री प्राउड। और मुझे लगता है कि आज आप जिस तरीके से आप उनका वेलकम देख रहे थे उनके पार्लियामेंट में, वो दिखाता है कि सब के सब दिली दिल में जो चाहते थे यूएस में वो अब हो रहा है। ये पॉपुलैरिटी के पॉइंट्स हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ बाइडन में स्टिल बोल दूंगा कि वो पॉलिटिकल हो सकता है, बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो अपनी कंट्री के लिए शायद ठीक कर रहे हैं। अगर दुनिया में किसी भी तरह की लड़ाइयों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक अच्छा स्टेप है। टैरिफ हो सकता है हमें भी अफेक्ट करे, बट अपने आप में टैरिफ इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है अगर वो भारत का नाम लेते हैं तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि वो ट्रेड भारत के साथ कर रहे हैं, वो भारत के साथ आगे करना चाहते हैं। एंड ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इस बजट में हमने इंडिकेशंस भी दिए हैं कि टैरिफ्स को लोअर